good evening. Right now it's about 10 minutes past 5. And as I told you yesterday in my video that I'm not finding market very comfortable at very comfortable level. So this is, let me just show you the Nifty. Nifty had almost like 200 points drop at one point of time. And there was a breakdown. But see how Nifty managed itself. There was a bounce from the lower levels, right? So before I go ahead, I'm your host, Dr. Seema Jain. I'm a SEBI registered research analyst. I'm a PhD in physics from IIT Delhi. I'm a SEBI registered research analyst, and I'm chief maintenance and founder at StockPro, and partner with Astha Fires, Zerodha, and Upstocks. So I reversed the order and hence I took a little longer to speak. Yeah. So it's okay, right? So what I really want to do today, again, I just want to go back and explain you the option chain. If you haven't understood what I was trying to tell yesterday, just go to the channel again and watch my video. So this is a video that I've made yesterday, and here I was talking about option chain, and I said that why should why should there be in the money call writing, right? There was yesterday in the money call writing. यहाँ पे देखो आप इस जगह पे call writing थी. Uh, all this space was call writing. This was all space which was in the money at that time. कल जब मैं वीडियो बना रही थी और आज इसमें फर्दर एडिशन हुए, काफी सारे एडिशन हुए, राइट? ऑन द अदर साइड अगर आप देखोगे तो पुट साइड में इन द मनी पुट में वाइंड अनवाइंड हुआ है, विच इज फाइन, क्योंकि लोग अपनी पोजीशन, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट्स जिन्होंने लिखे हुए हैं वहां से एग्जिट कर रहे हैं, राइट? अगर वो एग्जिट कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद वो लोग कहाँ अपनी एंट्री बना रहे हैं? आप ये सोचो, जो इंस्टीट्यूशंस है अगर एक जगह से एग्जिट करें तो कहाँ जा रहे हैं उसके बाद, राइट? ये जगह पे उन्होंने एग्जिट किया तो एडिशन कहाँ पे किया है? इस जगह पे आप देखो, ये एडिशन यहाँ से एग्जिट किया, ठीक है? लेट मी जस्ट change my color so that it becomes more prominent for you. So they exited from this place. यहाँ से exit किया है. यहाँ से आप देखो माइनस साइन देख रहे हो आप, तो यहाँ से एग्जिट किया है. कहाँ पे ऐड किया है? इस जगह से निकल के कहाँ चले गए वो लोग? यहाँ पे देखो आप, उन्होंने एडिशन किए हैं, इस जगह पे ऐड किए हैं, राइट? आप अपना एनएससी में जाके और लाइव डेटा में जाके आप इक्विटी डेरिवेटिव खोलिए, उसमें आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन मिलेगा और उस ऑप्शन चेन में जाके देखिए कि यहाँ से तो एग्जिट किया है उन्होंने, राइट? दे हैव एग्जिटेड फ्रॉम हियर और यहाँ जाके उन्होंने एडिशन किया है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि, और अगर आप इस इतने स्पेस को देखो, राइट, ये स्पेस देखो और ये स्पेस देखो आप, राइट? आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन देख रहे हैं और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन देख रहे हैं, दोनों आउट ऑफ द मनी है. और हम उसको ये देखना चाहते हैं कि दोनों स्पेस में क्या हो रहा है. ये आउट ऑफ द मनी है कॉल ऑप्शन, ये आउट ऑफ द मनी है पुट ऑप्शन, राइट? क्या हो रहा है? कहाँ पे आपको ज्यादा लिखाई दिख रही है? आज के दिन कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है? Where has open interest increased, right? If you notice, on the call side it is 45,000, 14,000, 34,000, 4,300. On this side, at two strike prices, there is unwinding that has happened. At one strike price, just 7,472, and similarly on the lower level, you will see some kind of put writing at much deeper level, which is 17,600 and 17,500. All right. So अब आप, अच्छा, अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं दूंगी आप लोगों को, and I'm understanding that you guys are paying attention to what I'm saying. प्लीज राइट इन द कमेंट व्हाट डज इट रियली मीन कि अगर आउट ऑफ द मनी कॉल राइट हो रहा है और पुट नहीं राइट हो रहा है, आप क्या इन्फर करना चाहते हो इस इंफॉर्मेशन के साथ? कल के लिए आपकी क्या इंफॉर्मेशन रहेगी और क्या आपका स्टांस रहेगा, राइट? दोनों चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ. तो एक बार फिर से ना, मैं आप लोगों के बिफोर आई प्रोसीड ऑन, आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स, राइट? तो कमेंट्स पढ़ते हैं.
Saurabh Scott said that another thoroughly comprehensive yet easy to understand explanation. Thanks a lot for putting so much work on your analysis. Thank you so much, Saurabh. And I would read one question that somebody has sent. Thank you everyone for writing your heart out here. And I feel very connected with you all. So somewhere Brajesh is saying that he made money in GSFC, but GSFC today with a high of 133. I have entered, I've given an entry at I think 117 or so, 114 or 14-15% का move इसने दे दिया है within few days, right? So one question that I wanted to answer was somebody is asking about the travel sector. So it's a very, very nice question that you've asked. And I do plan to, let me collect all the data points, and I will be making a video on this because it's a very, very interesting sector, right? At this point of time, where people have not been, going out for the last 1.5 years, what could be a projected scenario, let's say after 1 year, right? So there could be a good opportunity for us to enter. But let's review all the data points, right? So I'm going to make a video maybe by today is Tuesday, so Wednesday, Thursday, tomorrow, the day after, I will try to make it. All right. So thank you everyone for really, really, putting your heart here, and I feel very connected and I feel very happy when I hear from you all. So आज का मैंने जो एक स्टॉक निकाला था, बिफोर आई गो ऑन टू द स्टॉक्स, आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ रियलिटी हैज फॉलन. कल मैंने आपको ये चैनल दिखाया था, आज इस चैनल को इसने ब्रेक किया है. ठीक है, अब हम सपोर्ट कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक सपोर्ट हमको यहाँ पे नजर में आता है. सी एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो आईटी बहुत चला था, बहुत ज्यादा चला था. इतना कोई एक सेक्टर चलता है कभी? इतना कभी भी नहीं चलता है. सिंगल डायरेक्शन में चले जा रहा था. इसी तरह रियलिटी में भी एक करेक्शन आया है और हो सकता है ये कंटिन्यूसली कंटिन्यू करे, राइट? और फर्दर हो सकता है और प्रॉफिट बुकिंग इसमें आती हुई दिखाई दे. सो जो सेगमेंट आज ऊपर चला है वो है एनर्जी का और सीपीएससी का, राइट? सारे इसी के स्टॉक्स थे. अगर आप देखोगे तो ऑल द स्टॉक्स विच आर अप टुडे वर बिलोंगिंग टू द सीपीएससी एंड एनर्जी सिस्टम. और अगर आपने कल मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने यही बोली थी बात कि यही सेगमेंट मुझे जो है, हमने एनर्जी सेक्टर को देखा था, राइट? अगर आपको कल याद है तो मैंने एनर्जी बोला था. मैंने कहा था एनर्जी आफ्टर अ ह्यूज रियलिटी में बोला था, शायद रियलिटी में बोला था कि किस में बोला था कि a law after long time the breakout has come, so I don't expect any kind of correction right away, right? I don't know which sector I said. This is 1 day time frame. IT, media, सर्विस, ये तो सारे हमने डिस्कस किए थे दैट दे आर गोइंग टू बी गोइंग डाउन, राइट? ऑटो, हमने ऑटो की बात की थी. तो ऑटो में मैंने बोला था कि मुझे बहुत ज्यादा करेक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा है. ठीक है, आज थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग है. सो लेट्स सी, अगर ये इस जोन को पार कर जाएगा तो अगेन अ फर्दर फ्लाइट अप विल बी एक्सपेक्टेड, राइट? तो हियर, सॉरी, अभी जो इसका इंडेक्स है ऑटो का वो है 10,694. अगर 10,900 के ऊपर जाता है देन इट इज गोइंग टू बी out of any past barrier at least for another 100-150 points, right? And above this 11094 it is just going to take an up flight. So अभी क्या है सिनेरियो, कल के दिन क्या हो सकता है? अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा वीकनेस रहेगी बिकॉज आई चेक बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, आई वाज लुकिंग इनटू द एंटायर स्पेस, क्या बाइंग हुई है, क्या सेलिंग हुई है. आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद व्हाटएवर small positives have come. They are fine, they are not bad, but बहुत full of conviction नहीं है किसी में भी. Definitely there are some very, very good breakouts like IOCN, Coal India and BHEL, but still I don't know how long will this continue. So आज मैंने आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग एक ट्रेड दिया था. उस ट्रेड का नाम था एम मध्य MBAVL or something, MBAVL, मध्य भारत
MBAPL, right? This was the stock. And I have given this talk with a very specific reason. So let me just discuss out. I have so much to talk, guys. बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, and I मतलब it's not good, you know, if you look into the YouTube's statistics and everything. So it's not good idea to make long videos. But I don't know, खत्म ही नहीं होती बात. तो खत्म कैसे करी जाए, आई डोंट नो, क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है जो डिस्कस करनी होती है. तो हियर वी आर. ये स्टॉक आप देखोगे, आप शुरुआत से देखो इसको, राइट. ये काफी इसने इस जोन तक 91 तक इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, राइट. यहाँ तक कि पूरा स्टॉक जो है कंसोलिडेट हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 टू जून 2021. 2 साल इसने केवल कंसोलिडेशन किया है, राइट. आफ्टर दैट अ ब्रेकआउट हैड कम 90 से लेके अब ये 227 तक गया ऊपर स्टॉक विदाउट एनी मेजर करेक्शन. आफ्टर दैट सितंबर 2 से लेके थोड़ा इसमें करेक्शन हुआ और अब जो है इसने अगेन कंसोलिडेट किया है और एक ब्रेकआउट आया है, राइट. सो दैट इज हाउ इट टेक्निकली इट लुक्स. नाउ क्वेश्चन कम्स कि इतने हाई पे हमको पैसा लगाना चाहिए. आई रियली डोंट केयर अबाउट हाउ हाई अ स्टॉक इज, as long as its fundamentals are good, one, and two, technically it should look like it should be supported by the news, right. Technically हमने चेक कर लिया, हमने ये भी चेक कर लिया कि इसमें फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं. और थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है कि अगर न्यूज के साथ कोइंसाइड करता है आपका स्टॉक का बाय, then it surely will lead you into a good movement in the upward direction. So अब इस स्टॉक को हम थोड़ा जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं. द पूरा नाम इसका है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड. एंड अगर आप देखोगे 433 करोड़ की कंपनी है. करंट प्राइस 198. हाई और लो का डिफरेंस देख सकते हो आप. स्टॉक भी देख सकते हो. ROC 16, RO is 14, which is pretty good. कंपनी के प्रोज क्या है? कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर. एक्सपेक्टेड मतलब आने वाले समय में ऐसा सोचा जा रहा है कि ये अच्छा करेगी. Debtor days have moved from 69 to 53, right, which is a positive sign. Now company के cons क्या है? Company has a low return on equity. I don't think so this is low, right? It's pretty decent. Company might be capitalizing the interest cost. So I really don't understand what this statement really means. तो मैं इसके ऊपर elaborate नहीं करूंगी, right? अगर आप में से कोई CFA CA स्टूडेंट है तो प्लीज इसके ऊपर नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ, राइट. हम चलते हैं. मेरे को लगता है इसका मतलब यही होगा, माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट को जो है वो बचा रही है किसी तरह, ये नो मुझे ऐसा लगता है इसका ये मतलब होगा. बट एनीवे हम अपने फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं. तो सबसे पहले है कि इसकी सेल्स को देखते हैं. सबसे पहले अगर कोई कंपनी चलती है तो वो सेल्स के ऊपर चलती है. उसमें कंपनी में सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही है. तो डेफिनेटली कंपनी में सेल्स इंक्रीज हो रही है लगातार, स्टार्टिंग फ्रॉम 27 crores in 2018, and now when we stand at June quarter is 67 crores. एक और चीज मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग देख रही थी. बिफोर आई मेड द वीडियो आई वाज गोइंग थ्रू एवरीथिंग. तो आप देखोगे कि दिसंबर 2019 से शुरू होके इसमें कोई खास फर्क नहीं आया. इसमें रादर मार्च 21 में 1549 एंड जून में इट मेड अ 69 करोड़ सेल्स. Even on the peak of corona, the dip was not huge, right? Dip was not huge even in this quarter, even in the June quarter, because अगर आप बात करोगे कि अप्रैल क्वार्टर की, अप्रैल मई जून क्वार्टर में भी it has gone up, right? Whereas India had the second wave at that time. और ये वाला क्वार्टर है जब इंडिया हैड द फर्स्ट वेव, राइट. जून क्वार्टर में उसके रिजल्ट आए व्हिच आर आल्सो वेरी गुड. सो ये एक मुझे पॉइंट लगा इसका पॉजिटिव कि कंपनी में स्ट्रेंथ है, एंड दैट इज हाउ इट लुक्स टू बी प्रॉमिसिंग. फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं. इसकी अगर आप OPM देखते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज अ वेरी नाइस नंबर इन द रेंज ऑफ 20s, राइट. मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कितना मार्जिन है उनके प्रोडक्ट के ऊपर उनको मिलता है इज वेरी गुड. एंड देन टैक्सेस आर 29%. नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हैज बीन इंक्रीजिंग, राइट.
2.49 2018 में था और इस क्वार्टर में इस बार 8.29 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके बाद हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं कि सेल्स में क्या हो रहा है। तो सेल्स आप देखोगे लगातार इंक्रीज हो रही है। आप देखो 22, 40, 46, 45, 109, 129, 185 and 204, right? It's a very good sign. Then again, operating profit margin year on year basis have increased. Then net profit, if you see 1334499 and now 23 crores, right? Again a good number. So it shows that the company is continuously increasing its output. Then comes the borrowing, because I'm very concerned about debt ridden companies. मुझे जिस कंपनी के पास डेट होता है, उधारी होती है, मुझे वो नहीं पसंद है। मैं कैश रिच कंपनी चाहती हूँ। ऐसी कंपनी जिसके पास रिजर्व्स में बहुत सारा पैसा होना चाहिए, राइट? इतना पैसा होना चाहिए कि कल अगर कंपनी किसी कारणवश कोई कोरोना जैसा लॉकडाउन हो जाए तो वो अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट कर सके। तो आप देखोगे इनके रिजर्व्स ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुए, राइट? इन ending quarter, in ending financial year 2021, they had 127 crores, right? Borrowing was 70, right? So that ratio is very, very nice, like reserves are pretty high. Then another thing that I really look forward in any company, that it should be cash rich. और वो cash rich कब होगी? जब उसकी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट होगा। तो अगर आप देखते हो कैश फ्लो में जाके देखते हो तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। -10 से 14 हुआ, फिर 14, 6, 10, 11 व्हाटएवर, एंड नाउ इट इज 30 करोड़। एंड एक और जो बहुत अच्छी बात मुझे इसमें लगी कि ये जो भी कैश जनरेट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी से, उससे ये लोग अपने फिक्स्ड एसेट्स को बना रहे हैं, राइट? आप देखो इन्होंने ईयर ऑन ईयर दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन actually building up their infrastructure, right? So that's a very, very positive point. So debtor days, as you have seen, has reduced. So this is a company. Then I went into see, मेरा क्या मानना है कि I would not like to trade in a company where I don't know about the company, right? I'm going to show you. Oh, sorry, just a sec. I will try to show you. I have also purchased 2,000 shares of this, and I will add on more if it goes down. So this is the company's website, and they have, what I could understand कि ये लोग एग्रो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब मैंने आपको 3 चीजें बोली थी। मैंने बोला था टेक्निकली अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए, एंड जो ब्रेकआउट है ना वो न्यूज के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। और जहां तक मुझे पता है कि अभी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा आया था from the finance minister or from the prime minister that there is certain amount of they have pulled out some kind of reserves for or subsidy, or I don't know, I'm really not recollecting, but they were having some kind of package for the agro industry, right? And you can see what is happening in the agro industry. I mean, it could be like I have given one stock, Best Agro, few months back to our student. So this has been just going up. Best Agro, so a little bit under pressure, but Zuari Agro, right? So all of them, they are showing some strength. Hatsun Agro. So ये सब जो है न्यूज के चलते आपको एंड ये ऐसा स्टॉक मुझे लगा कि इसमें भी देखो, आज आप देखोगे तो देयर इज पॉजिटिव मूव, राइट? हैट्सन एग्रो, एंड हमारा था MB मध्य भारत ABPM ये वाला। एंड इसने जो कल क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी, राइट? तो इट लुक्ड वेरी good to me for a buying opportunity above its current high, right? About 200 के ऊपर हमको, like I felt it's a very good opportunity to enter into this stock. मेरा इसका 1 साल का टारगेट, I don't want to discuss politics, but मैं जो मुझे समझ में आ रहा है, ये जितना भी एजिटेशन चल रहा है किसान का, प्लीज डोंट कोट मी एनीवेयर, बट मेरा अपना ऐसा परसेप्शन है, आई मे बी रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी एजिटेशन वगैरह चल रहा है,
I don't think so anything will happen as far as the law is concerned, the laws that have been made. But to to make farmer happy, किसानों को थोड़ा सा अच्छा लगे, उसके लिए मुझे लगता है उनको बहुत सारी सब्सिडीज और बहुत सारी एक व्हाट डू यू से अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ अ लॉट ऑफ सब्सिडीज एंड बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और उनका जो जो भी है उससे मुझे लगता है कि किसानों को जब एक इंसेंटिव मिलेगा ना, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसमें ग्रोथ जबरदस्त आने की मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आने से क्या होता है कि लोग, अब जैसे एक सेक्टर है वो पूरा का पूरा सेक्टर मूव करने लगेगा। मैंने आपको कई सारे आज सेक्टर दिखाए, इसी सेक्टर में स्टॉक्स दिखाए, हैट्सन एग्रो दिखाया, जुआरी एग्रो दिखाया। तो I always like to find out the stock where the movement has not happened. So this is a stock which I felt is good. So इसमें news भी है, fundamentals भी है और इसमें technicals भी है. When all three come together, you should remember that the stock will definitely become a multi-bagger. So I think video is becoming too long. Let me just quickly give you two stocks for tomorrow. And the first stock that I'm going to give you is Bata India. It may be a shorting opportunity tomorrow in Bata India, right? कहाँ पे Bata India की shorting opportunity आएगी? 1743 के नीचे आएगी. So please guys, अगर आपको मेरे videos अच्छे लगते हैं, write down something, write comment and give a thumbs up. It's important, you know, for you also to do your bit by making, you know, like I like when I see people have given thumbs up. It's okay if somebody is given down as well. There are all kind of people available in the market, so that's okay. That's not a problem. But do, it doesn't matter to me. Positive, negative doesn't. आपने मेरा वीडियो देखा वो बहुत है. तो now let's quickly tell. So Bata India is looking weak to me, and then another stock that looks weak to me as of now is Asian Paints, right? Asian Paints is looking weak, and this could be a selling opportunity below 3340, right? इस जगह के नीचे एक selling opportunity आ सकती है. और अगर आप buy side में देखना चाहते हो, तो मुझे लगता है Metropolis एक अच्छा stock है to buy. और अभी क्या है, एकदम से आज इसमें इतनी गिरावट आई है और यहीं पे कहीं पे एक बहुत बड़ा इसका सपोर्ट जोन है और यहीं से इसमें एक रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी. यू सी एट द बैक, it is standing on a reversal zone, support zone, supply zone, so demand zone, sorry. यहाँ पे एक हो सकता है इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आए, राइट? तो मैंने आपको दो तीन स्टॉक्स बताए हैं. आई टोल्ड यू अबाउट बाटा फॉर सेल, एशियन पेंट्स फॉर सेल, मेट्रोपोलिस फॉर बाय, राइट? एंड एक दो स्टॉक्स और हैं जो मुझे बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं. तो एक उनमें से स्टॉक है बीएससी, राइट? बीएससी लिमिटेड इज अ कैश स्टॉक. It's looking very good to me. We can have an entry above 1300, right? 1300 के ऊपर हमको इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू एंटर, एंड हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें श्योरली होगा 14,000 का. Straight up, right? In a few days, you can expect that. Then, as somebody was asking, what will happen to the I'm going to make a full video on the travel industry. But as of now, मुझे Wanderla is looking very good, right? Wanderla you can buy above 245. I hope I've been talking about Sagar Cement for so many days. I hope Sagar Cements, I hope you have seen the breakout, right? I have given a buying at 290 and look at the, it has made 305, and first target you can definitely, as I told you, you will be expecting a 316, right? So keep watching. अगर आपने सागर सीमेंट का ब्रेकआउट देखा है आज, तो प्लीज जो भी आपने मैं स्टॉक्स देती हूँ और आपको उनसे कुछ अच्छा लगता है, please comment in the comment section. And hope you have understood. I'm expecting an answer for you about call writing and call unbinding, right? So please, it should be always both ways, right? When I do so much of hard work, you got to learn and you got to write, so that we can work together and upgrade our skills. So all the best. And if you have not been following me on my Twitter handle, please do so. And in the description box of the same, you know, on the same, you will be able to find my handle for this thing,
you will be able to find my Telegram channel, right? Go and subscribe it right away. I'm pretty active in the live market, and with that, I'm going to be signing off. All the best, guys. And if you like videos, please share and subscribe and give a thumbs up. Take care. Bye bye. See you all, and see you soon in one of the live webinars. All the best.